Good morning. Myself Shalini Garg, lecturer electronics, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज हम 8086 के डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे। Now this is the list of data transfer instructions of 8086. You have 10 instructions: move, exchange, load flag, store flag, 2 instructions for IO devices, that is in and out, load effective address, load data segment LDS, load extra segment LES, and translate. Now let us first consider move instruction. The format is move operand 1, operand 2. That means the content of operand 2 are copied in operand 1. Operand 2 is the source register, is the source, and operand 1 is the destination. The content of operand 2 remains same. After this instruction, value of flag is not changed and all addressing modes are possible for this instruction. Possible list of operand 1 and operand 2 is shown here. Register to register, it can be register and 8/16-bit immediate data, memory register, register memory, segment register, register and segment register, memory, 8/16-bit immediate data, memory and segment register and memory. The list of register can be any of the general purpose register, which is AX, BX, CX, DX, or the 2 pointer register SI/DI and the 2 pointer register SP and BP, and 2 index register SI and DI. The 16-bit register can be used independently as a 8-bit register. जैसे AX को हम independently AH भी यूज़ कर सकते हैं और AL भी यूज़ कर सकते हैं as a 8-bit register. Similarly, BH and BL, CH, CL, DH and DL, these are all independent 8-bit register. 16-bit register यूज़ करना होगा तो AX, BX, CX और DX को यूज़ करेंगे. Next, let us take few examples. First, move AX, BX. This means content of register BX are copied into AX. For example, if AX is 456A, BX is CD23, the data is in hexadecimal. After execution, BX के content AX में आ जाएंगे. BX में अभी CD23 पड़ा है, तो AX will also be equal to CD23 और BX में जो वैल्यू थी सेम रहेगी, that is CD23. Now let us consider second example. Move रजिस्टर में हमें 8 या 16 बिट डेटा कॉपी करना है. अगर डेटा 8 बिट का है तो इस साइड रजिस्टर भी 8 बिट का होना चाहिए. अगर डेटा 16 बिट का है तो इस साइड रजिस्टर भी 16 बिट का होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मूव CL, 12. 12 इज ए 8 बिट रजिस्टर. डेटा हेक्साडेसिमल में है और हर एक हेक्साडेसिमल डिजिट 4 बिट बाइनरी की है, तो टोटल 4 + 4, it is a 8-bit data. After execution of this instruction, this 12 will be copied in register CL, so CL will be equal to 12. Similarly, move DX, 8906. Now DX register is a 16-bit register, तो उसके आगे जो डेटा है वो भी 16-bit का आएगा, and after execution of instruction, DX will be 8906. Next, move SI, AL. Now you have to transfer or copy the content of register to a memory location. अगर 8 बिट का रजिस्टर है तो एक मेमोरी लोकेशन में कंटेंट ट्रांसफ़र होंगे. रजिस्टर अगर 16 बिट का है तो 2 कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में 16 बिट के रजिस्टर के कंटेंट कॉपी होंगे. Now here we have the register is AL. ये जो SI है ये इंडिकेट कर रहा है कि SI में ऑफसेट है. SI
is an offset associated with data segment register. ये टेबल याद रखना होगा, ये मैंने इनिशियली सेगमेंटेशन में भी बताया था कौन सा सेगमेंट रजिस्टर के साथ कौन सा ऑफसेट रजिस्टर आता है। तो अगर ऑफसेट एसआई में है तो फिजिकल एड्रेस बनेगा डेटा सेगमेंट इंटू 10 प्लस एसआई। इस मेमोरी लोकेशन में एएल के कंटेंट कॉपी होंगे। डेटा सेगमेंट के साथ ऑफसेट कैन बी इन एसआई, डीआई, बीएक्स और इट कैन बी 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट। कोड सेगमेंट रजिस्टर के साथ ऑफसेट इज इन आईपी। स्टैक सेगमेंट के साथ ऑफसेट इज इन एसपी एंड बेस पॉइंटर। दोनों बेस पॉइंटर रजिस्टर जो है वो स्टैक सेगमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं। और एक्स्ट्रा सेगमेंट फॉर स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन, एक्स्ट्रा सेगमेंट के साथ डीआई में ऑफसेट होगा और स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन में डेटा सेगमेंट के लिए एसआई में ऑफसेट होगा। नाउ फिजिकल एड्रेस, अगर डेटा सेगमेंट की वैल्यू 1000 है तो 1000 इंटू 10 प्लस एसआई की वैल्यू 6400, तो यू हैव 1000 इंटू 10 इज 10,000 प्लस 6400 विच इज इक्वल टू 16400। ये बनी आपकी मेमोरी लोकेशन की वैल्यू। इस मेमोरी लोकेशन में एएल के कंटेंट विच इज़ 45 वो कॉपी होंगे। नाउ सपोज ये मेमोरी लोकेशन है 16400 मेमोरी लोकेशन में पहले से अगर 30 है, 1640 में 40 है, तो इसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगी एएल की वैल्यू एंड न्यू वैल्यू ऑफ मेमोरी लोकेशन 16400 will be 45. The content of other memory location will remain unchanged, and after execution the content of AL will also remain same, that is AL will be equal to 45. Now next move CX ब्रैकेट में BX। जहाँ पे भी ब्रैकेट आएगा दिस मीन्स वी हैव टू ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन टू रजिस्टर। अब यहाँ पे जो CX रजिस्टर है इट इज़ अ 16 बिट रजिस्टर, तो हमें दो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन से डेटा CX में ट्रांसफ़र करना होगा। लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मेमोरी लोकेशन। सपोज डेटा सेगमेंट इज 4000, BX इज 2000, देन फिजिकल एड्रेस इज डेटा सेगमेंट इंटू 10 प्लस BX, क्योंकि BX is a default offset register associated with data segment register, इसलिए इसको हमें डेटा सेगमेंट रजिस्टर के साथ ही ऐड करना है। दैट इज 4000 इंटू 10 प्लस 2000 DX की वैल्यू विच बिकम्स 40,000 प्लस 2000 विच इज इक्वल टू 42,000। So this is the value of the memory location. इस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट डेटा सेगमेंट इंटू 10 प्लस BX, इसके कंटेंट CL में आएंगे। इसके नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन के CL में आएंगे। सपोज 42,000 में 10 है, देन आफ्टर एग्जीक्यूशन CL विल बी इक्वल टू 10। इसकी नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन दैट इज डेटा सेगमेंट इंटू 10 प्लस BX प्लस 1, इसके कंटेंट CH में आएंगे। इसकी वैल्यू will be 42,000 plus 1 which is 42,001, and 42,001 में अगर 1 है तो CH में 1A आ जाएगा। So the combined value of CX will be equal to 1A10। पहले CH हायर ऑर्डर रजिस्टर की वैल्यू लिखी जाएगी, फिर CL लोअर ऑर्डर रजिस्टर की वैल्यू लिखी जाएगी। The content of memory location remain same because अब यहाँ पे जो मेमोरी लोकेशन है इट इज़ दी सोर्स ऑपरेंड। नेक्स्ट मूव डेटा सेगमेंट AX, दैट मीन्स हमें अब रजिस्टर के कंटेंट किसी सेगमेंट रजिस्टर में कॉपी करना है। सपोज डेटा सेगमेंट इज 1000, AX इज 5000, तो आफ्टर एग्जीक्यूशन कंटेंट ऑफ AX विल बी कॉपीड इनटू डेटा सेगमेंट रजिस्टर। AX में 5000 है तो एग्जीक्यूशन के बाद डेटा सेगमेंट में भी 5000 आ जाएगा।
AX की value will remain unchanged, that is AX will be equal to 5000. Next, move CX comma extra segment means अब हम segment register की value किसी register में copy कर रहे हैं. It can be any segment register. Here it can be any register. Now suppose CX is 27B, extra segment is 6289. तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ये जो एक्स्ट्रा सेगमेंट की वैल्यू है इट विल बी कॉपीड इन CX रजिस्टर. सो CX विल बी 6289. कंटेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेगमेंट विल रिमेन अनचेंज, दैट इज इट विल रिमेन इक्वल टू 6289. नाउ let us take one more example. अब this is move bracket में DI comma 4B. We have to move immediate data in a memory location. अगर again 8 बिट डेटा है तो हमें एक मेमोरी लोकेशन में डेटा मूव करना है. अगर 16 बिट डेटा है तो दो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में डेटा मूव करना होगा with higher order data in higher order memory location and lower order data in lower order memory location. Now here DI is the offset register associated with data segment register. तो अगेन जो हमारा फिजिकल एड्रेस बनेगा दैट विल बी डेटा सेगमेंट इंटू 10 प्लस DI. ये मेमोरी लोकेशन बनेगी. इस मेमोरी लोकेशन में हम 4B कॉपी करेंगे. अज्यूमिंग डेटा सेगमेंट इज 6000, DI इज 200. तो फिजिकल एड्रेस क्या बना 6000 इंटू 10 विच इज 60000 प्लस DI which is 200, that is 60200. ये मेमोरी लोकेशन की वैल्यू बनी. अब इस मेमोरी लोकेशन में क्या कॉपी होगा 6020 में it is 4B which is being copied into this, so this memory location will be equal to 4B. Next, move 16-bit immediate data in memory. Suppose the instruction is move bracket में BP comma 1687. Now BP is the offset register associated with the stack segment. So physical address will be stack segment into 10 plus 1687. अगर स्टैक सेगमेंट की वैल्यू 7000 है, BP की वैल्यू 0432 है, तो फिजिकल एड्रेस विल बी 7000 इंटू 10 प्लस 0432 विच इज इक्वल टू 70432. अब एक मेमोरी लोकेशन में क्योंकि 8 बिट का डेटा आएगा हमें 2 कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में ये 16 बिट इमीडिएट डेटा स्टोर करना होगा. दिस 87 इज अ लोअर 8 बिट डेटा, तो ये लोअर ऑर्डर मेमोरी 70432 में स्टोर होगा. दैट इज 70432 के अंदर 87 विल बी कॉपीड. The next memory location will be stack segment into 10 plus 0432 plus 1 which is equal to 70432 plus 1 which is equal to 70433. That is the next memory location. इसमें ये higher order जो data है 16, this will be copied in this memory location. So 16 bit data अगर ट्रांसफ़र करना है तो हमें दो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. नेक्स्ट, मूव एक्स्ट्रा सेगमेंट कॉमा मेमोरी लोकेशन से डेटा हमें अब एक्स्ट्रा सेगमेंट में मूव करना है. एक्स्ट्रा सेगमेंट इज अ 16 बिट रजिस्टर. तो अगेन SI इज एसोसिएटेड विद डेटा सेगमेंट रजिस्टर. तो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस विल बी डेटा सेगमेंट इंटू 10 प्लस SI. इस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट एक्स्ट्रा सेगमेंट के लोअर 8 बिट्स बनेंगे एंड नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन दैट इज डेटा सेगमेंट इंटू 10 प्लस SI प्लस 1, इसके कंटेंट हायर ऑर्डर मेमोरी लोकेशन के हायर ऑर्डर एक्स्ट्रा सेगमेंट के कंटेंट बनेंगे. नाउ सपोज data segment is 1000, SI is 50. The physical address is 1000 into 10 plus SI which is equal to 10,000 plus 50 which is equal to 10,050. तो 10,050 की जो कंटेंट है वो एक्स्ट्रा सेगमेंट के लोअर 8 बिट्स बनेंगी 20 एंड नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन विच इज़ 10051. इस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट विच इज़ 50
This will form higher order value of extra segment. That is, extra segment will be equal to 5020. Now, some important points. Code segment register cannot be the destination register. कोड सेगमेंट रजिस्टर को छोड़कर एनी सेगमेंट रजिस्टर, 4 सेगमेंट रजिस्टर है हमारे पास, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड स्टैक सेगमेंट। तो तीनों सेगमेंट, बाकी के 3 सेगमेंट कैन बी द डेस्टिनेशन रजिस्टर। मूव CX, AX is an invalid instruction. Next, segment to segment register is not allowed. दोनों right side भी and left side, that means operand 1 and 2 both cannot be the segment register. One of them can be a segment register, other can be either memory or register. Immediate move to segment register is not allowed. You cannot move data segment, 1 2 3 4. It is again an invalid instruction. If you want to move 1 2 3 4 in data segment, first move 1 2 3 4 in any of the register and then move data segment, that register. Both operand should be of same size. DX एक 16 बिट का रजिस्टर है, BH एक 8 बिट का रजिस्टर है, तो मूव DX, BH इज अ इनवैलिड इंस्ट्रक्शन। दोनों या तो 8 बिट के होने चाहिए या दोनों 16 बिट के होने चाहिए। This is all about move instruction. Thank you.